चलो, let's see the page number triple two, page number 222. Page number 222. The topics that we have to see in today's class is National Sample Industries Corporation. National Sample Small Industries Corporation (NSIC), which is set up by the central government in year 1955, and whose logo is like this, which I have drawn on the board. Three triangles are there. Three triangles are there. And these three triangles are adjacent to one another. First triangle is of orange color. Second triangle is of gray color. Third is of green color. So orange, gray, green. Okay. I have not seen anywhere what is the meaning of these three triangles, but I can guess that these three triangles are showing the names of the enterprises, that is micro enterprises, small enterprises and medium enterprises. Maybe I am wrong. I am not sure that whatever I am telling right now is 100% correct, because I have never found about the meaning of this triangle. Because three triangles are there and three types of enterprises are there, which we know already, that is the micro enterprises, small enterprises and medium enterprises, to support the support in the field of marketing and advertisement. These from no Shivam Kumar, why you have written the message no to everybody? कुछ कहना है शिवम? सॉरी मैम। अच्छा कोई बात, चलो चलो कोई बात नहीं। ये तुम्हारे देखो, ये किताब में बच्चों नहीं बना हुआ है, ये किताब में नहीं बना हुआ है। मैं इसके बारे में सर्च कर रही थी, मैं और जानना चाह रही थी कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है। तो मैंने देखा कि NSIC जो है उसके ऊपर ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन करके कुछ लिखा हुआ था, तो वो सिंबल बना था, तो मैं समझ गई कि ये उसी का लोगो है, NSIC का लोगो है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इट एंड हाउ इट works. So first of all, you can see the first line. This was set up in 1955. You should memorize the year, in which any organization or any corporation was set up by the government. ठीक है, ये तुम्हें याद करना होगा। जैसे कंपनी एक्ट है, ठीक है, तो कंपनी एक्ट कब कब का है ये तुम्हें याद करना होगा। NSIC कब बना, DIC कब बना, तो ये सारा तुम्हें याद करना होगा। ये सारा MCQ में आ सकता है या मैच द फॉलोइंग में आ सकता है कि मिलाओ किसका इस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ था, किसका 1950 में हुआ था, 2005 में हुआ था। तो ये मैच द फॉलोइंग भी आता है, तुम लोग उसको याद करना। तो पहला तुम्हारा क्वेश्चन हो गया कि व्हेन वाज NSIC सेट अप। तो NSIC वाज सेट अप इन 1955। व्हाट फॉर, क्यों? अगर आगे एक लाइन में व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ NSIC, क्या मेन फंक्शन है, एक लाइन में लिखो, तो आंसर क्या होगा? इट वाज सेट अप टू प्रमोट एड मींस हेल्प करना, सपोर्ट करना, प्रमोट एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस। फॉस्टर मतलब पालन पोषण करना, उसको बढ़ाना, फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेस यूनिट्स इन द कंट्री। खत्म हो गया। यानी इसका मेन फंक्शन एक ही लाइन पे है कि इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। इट इज अ पब्लिक enterprise चिल्ड्रन, इट इज अ पब्लिक सेक्टर enterprise established by whom? Established by the central government. So it was set up to promote, aid and foster the growth of small business units in the country. ठीक है। अच्छा, अब है ये किस किस मेन फंक्शन पर और फोकस करता है। तो दिस फोकसेस ऑन द कमर्शियल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज फंक्शन। क्या क्या काम करता है ये देखा जाए, देख लो, सुन लो और जान लो, क्योंकि तुम लोगों में से बहुत से बच्चे अगर जॉब नहीं मिला, जो कि भाई इन फ्यूचर मैंने तुम लोग को पहले भी कई बार कहा है कि नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू
come by the job. It is very difficult to get the job in near future. Okay, so many of you will surely start your own enterprise. It may be micro, medium, or small. So you must know the role played by NSIC. You can get the support of an NSIC in the field of marketing, in the field of advertisement. Look at this. In what manner you can be supported by the NSIC. याद करते रहे, भविष्य में तुम्हारे काम आए. ठीक है. पहला क्या करता है, ये पहला काम करता है सप्लाई इंडिजिनस एंड इंपोर्टेड मशीन. इंडिजिनस मीन्स डोमेस्टिक घरेलू. ये घरेलू और इंपोर्टेड मशीन को खरीदता है, हायर कर देता है ना, खरीदता है. और इजी हायर परचेज टर्म, खरीद कर क्या करता होगा एनएसआईसी, बिजनेस तो है नहीं, वो एमएसएमईज को बांट देता है, उसको सेल कर देता है. कम दाम पे खरीदता है विदेश से या अपने देश से मशीन को खरीदता है और फिर एमएसएमईज में जो जो लोग हैं तो उन लोगों को बांट देगा. पहला ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया. सेकेंड, प्रोक्यूर मतलब वसूलना, खरीदना. प्रोक्यूर खरीदना, सप्लाई करना और डिस्ट्रीब्यूट इंडिजिनस एंड इंपोर्टेड रॉ मटेरियल. जैसे ये विदेशों से या देश के अंदर से मशीन खरीदता है एनएसआई से, फिर एमएसएमईज को दे देता है. सिमिलरली एनएसआईसी आल्सो बायज रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड or from different part of the country itself, and then it gives to MSMEs so that they can get the machinery and raw material as well at the cheaper price. ये इसका पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन हो गया. तो पहला मशीन खरीदना, दूसरा रॉ मटेरियल खरीदना, तीसरा क्या करता है भाई देखा जाए, export the products of small business units and develop export worthiness. तुम जो सामान बनाओगे उस सामान को तुम्हें एक्सपोर्ट नहीं करना होगा. You have to contact NSIC that you want to export your product to Singapore. Immediately NSIC will come forward and it will help you in sending your product to Singapore or in any other part of the country, in any other part of the world. So in export promotion it helps a lot to the MSME. ठीक है, तीसरा तीन हो गया. चौथा मेंटरिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेज. मेंटोर मतलब वो उसका टॉर्च बियरर है, वो उसका गॉड फादर है. जैसे कहते हैं ना कि उसका गॉड फादर वो है, हम लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग क्यों बोलेंगे, हम लोग तो सेलिब्रिटी थोड़ी ना है. तो बोलते हैं ना कि जैसे वरुण धवन कह देंगे कि मेरे गॉड फादर तो गोविंदा है, हीरो. ठीक है, मेरे गॉड फादर तो वो मतलब जो उसको गाइड किया, तो वो एनएसआईसी इज द गॉड फादर ऑफ एमएसएमई. एनएसआईसी द गॉड फादर और द मेंटर ऑफ एनएसआईसी, क्योंकि वही उसको सिखाता है, वही उसको हेल्प करता है, वही उसको रास्ता दिखाता है. एंड एडवाइजरी सर्विसेज एंड टाइम टू टाइम NSIC gives valuable advice or suggestion to the MSMEs. Next, serve as technological business incubators. Serve as technological business incubator. Incubator तुम लोगों ने सुना होगा, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं वो मतलब अगर वीक होते हैं, टेम्परेचर अगर अच्छा नहीं होता है, तो हॉस्पिटल्स में इंक्यूबेटर्स में छोटे छोटे बच्चों को जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं उनको इंक्यूबेटर में डाल दिया जाता है. इंक्यूबेटर इज अ मशीन विच इज यूज्ड इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स और द क्लिनिक वेयर न्यूली बॉर्न बेबीज आर केप्ट under the controlled temperature to survive them. That is called the incubators. So incubator is a machine which gives life to the small babies. Okay, which gives life to the small babies. So incubator is a machine. Just like incubator used in hospital by the doctors to save the lives of babies, these NSIC also provide incubators where several machineries are kept and on requirement it is disposed of, it is sold by the
NSIC and supplied to the MSMEs. ठीक है, तो ये बहुत सारी मशीनरी को रखता है, तो टेक्नोलॉजी रहता है। ठीक है, तो NSIC टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते रहता है MSMEs को। नेक्स्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। पेज नंबर 220। सारे बच्चे देखो याद कर, अगर मेरी बात को ध्यान से सुनोगे, अपने सामने किताब खुली रखोगे, यू नीड नॉट टू गिव सेपरेट टाइम टू बिजनेस स्टडी। मैंने पहले ही कहा, तुम लोग 40 मिनट की क्लास में फाइनल एग्जाम के लिए तैयार कर लोगे, अलग से टाइम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें है क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। ठीक है, उनको बताता है कि भाई सुनो, ये नया मशीन आया है, तुम जो 100 सामान बना रहे हो, तुम जो 100 पैकेट बना रहे हो ना, तो ये नया मशीन आया है, ऐसा टेक्नोलॉजी आया है, ये 200 पैकेट तैयार कर देगा। तो ये उसको बताते रहता है, उसको अवेयर करता है। किसको? MSMEs को। कौन बताता है? NSIC बताता है ना। लास्ट, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेंटर। ठीक है, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बेंगलोर में है। बेंगलुरु में STP है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, जो एक्चुअली STP सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क इज अ क्लस्टर ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट यूनिट। It is a cluster. Software Technology Park is a cluster or the groups of software export units in which software technological companies develop. उसमें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल कंपनीज डेवलप होते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को या फिर अदर प्रोफेशनल सर्विसेज को विदेशों में ये सप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डील होता है, IT सेक्टर यहाँ पे फ्लरिश करता है, वो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क हो गया। तो ये सारा मदद जो है वो NSIC करता है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोवाइड करता है NSIC MSMEs को। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फंक्शंस वी हैव डिस्कस्ड हियर। 7 फंक्शन हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ठीक है, लाइन में खड़े हैं शिवम कुमार और शाश्वत। हाँ, चलो अब इसके बाद देखो एक चीज यहाँ लिखा हुआ है, अ न्यू स्कीम ऑफ परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। अगर मान लो डैश आ गया, अ न्यू स्कीम ऑफ डैश ऑफ स्मॉल बिजनेसेस इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू NSIC with a twin objective, that is sensitizing the small industry about the need for credit rating, और दूसरा encouraging the small business units to maintain good financial track record। अब मैंने क्या बोल दिया, समझ में तो आया नहीं कि मैं बोल क्या दी। हम ये बोल रहे हैं कि NSIC ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, पता है क्या वो है? परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। MSMEs को कह दिया कि भाई तुम लोग अपना परफॉर्मेंस अच्छा करो, अच्छे से काम करो। ठीक है, अगर तुम अच्छे से काम करोगे तो तुम्हारा रेटिंग अच्छा होगा, तुम्हारा ग्रेडिंग अच्छा होगा, और जितना अच्छा तुम्हारा ग्रेडिंग होगा मार्केट में गुडविल बढ़ेगा, तुम्हारा मार्केट में रिकॉग्निशन तुम्हें मिलेगा, तो तुम्हें कोई भी बैंक कभी भी लोन देने के लिए तैयार रहेगा। ठीक है, तो इस तरह का NSIC ने एक नया स्कीम चालू किया है MSMEs के लिए कि भाई आपका क्रेडिट रेटिंग होगा। जैसे मैं कह दूं कि जो बच्चा जितना अच्छा परफॉर्मेंस क्लास में करेगा 11th या 12th में, उनको प्रोजेक्ट में उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो तुम लोग जितना अच्छा परफॉर्मेंस करते जाओगे क्लास में, रेगुलरली रहोगे, वो क्लास वर्क होमवर्क सब तैयार रखोगे, तो ऑब्वियसली यू विल गेट 20 आउट ऑफ 20। ये होता है थोड़ा सा। ठीक है, एक्सटर्नल भी आते हैं, इंटरनल भी होते हैं, लेकिन साल 2 साल का रिकॉर्ड टीचर के दिमाग में सेट हो जाता है कि बच्चा जो है 11th 12th में अच्छा किया था, पर इसको हम भी थोड़ा सपोर्ट करें। ये होता है, ऐसा होता है। ठीक है, हालांकि वहाँ पे परफॉर्मेंस भी तुम्हें देना पड़ता है। तो तुम्हें मैं कह रही हूँ कि तुम लोग अपने परफॉर्मेंस को ठीक करो, मैं अपने मन में रैंकिंग करूँगी। ठीक है, हाँ, रैंकिंग करूँगी और फिर तुम्हें मार्क्स अच्छा मिलेगा। तो अगर ऐसा कह दिया जाए तो तुम लोग थोड़ा सा अलर्ट हो ही जाओगे। बिल्कुल, ये जाहिर सी बात है, तुम लोग अलर्ट हो जाओगे, तो अलर्ट होगे तो मार्क्स मिलेगा अच्छा। NSIC ने भी कहा, MSME को सुन लो भाई, सुन लो,
जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा, मार्केट में गुडविल अच्छा होगा, यू विल गेट लोन फ्रॉम बैंक ऑन इजी टर्म्स। ठीक है, तो ये स्कीम शुरू किया किसने? एनएसआईसी ने। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। क्या नाम है उसका? परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग स्कीम। Performance and credit rating scheme, and two objectives are there of this performance and credit rating scheme. The first is sensitizing the small industry about the need for credit rating. Sensitize करना, उसको सेंसिटिव बना देना कि उठो जागो, कि क्रेडिट रेटिंग तुम्हारा जितना अच्छा होगा, लोन तुम जितना जल्दी जल्दी चुकाते जाओगे, बैंक को वापस करोगे विद इंटरेस्ट रेट, जितना चुकाते जाओगे तुम्हें जल्दी जल्दी बैंक से उधार मिलता जाएगा। और सेकंड है एनकरेजिंग द स्मॉल बिजनेस यूनिट टू मेंटेन गुड फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड, और अपना फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा बनाना। मतलब तुम्हारा फाइनेंसिंग के मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जितने एमएसएमईज हैं, ठीक है, जितने एमएसएमईज हैं, सैकड़ों एमएसएमईज हैं, तो जिसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होगा, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, ओनली दे विल गेट loans from the commercial bank at easy terms and conditions। ठीक है, ये तुम्हारा होता है। अब ये मैंने टच कर दिया इस टॉपिक को, एग्जाम में आएगा, ये मत कहना कि मैम आपने तो बताया ही नहीं इसको। नेक्स्ट, मार्केटिंग सपोर्ट टू एमएसएमईज। अच्छा, इसमें तुम लोग ऑब्जेक्टिव देख लोगे, तुम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख लेना। कौन सा? मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम का ऑब्जेक्टिव देख लोगे, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। नेक्स्ट इज मार्केटिंग सपोर्ट टू एमएसएमई। मार्केटिंग सपोर्ट कैसे होता है, तुम लोग को एक अभी भी चीज दिखाते हैं यहाँ पर। तुम लोग को मैं एक बार बता रही थी, तुम लोग उसको समझे नहीं थे, तुम लोग को सुनाते हैं कुछ। और एक दिन तुम लोग को कह रहे थे ना कि बहुत सारा ऐड आता है, तो टीवी में भी आता है। देखो हम दो ऐड दिखा रहे हैं, दो ऐड। ये आरबीआई का ऐड है, बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार, ये आरबीआई का है। ठीक है, एक और तुम लोग सुन रहे हो, तुम लोग सुन रहे हो? इसमें बट आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। वो अच्छे से आवाज नहीं आ रही है? ओहो, आवाज ठीक से नहीं आ रही है? ओहो, तो एक मिनट रुक जाओ। तुम लोग को हम ऐड दिखा रहे हैं ना, क्योंकि उससे क्या है, तुम लोग समझोगे कि अब देखो, पता नहीं आवाज अच्छा है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या उत्कर्ष? नो मैम, नो मैम, नो मैम, थोड़ी भी नो आवाज? मैम नहीं आ रही। ओ, अब बताओ, जब आवाज ही नहीं आएगी तो हमें दिखा के करें क्या, बताओ ना। जब आवाज ही नहीं आ रही है तो दिखा के करें क्या? थोड़ी भी आवाज नहीं आ रही है तब तो फिर बताना बेकार हो गया मेरा। बताने कितना ढूंढ के तुम लोगों ने लाए हैं कि अभी आ रहा है मैम। अरे आवाज है तो ठीक है, एक मिनट। अब आवाज आ रही है सबको ठीक से? अब ठीक से आवाज आ रही है शिवम, रोहित, आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है बिल्कुल क्लियर? हेलो, आवाज आ रही है आसिफ? यस नो मैम, आपकी आवाज आ रही है फोन से। कौन सा? मैम आपका नहीं आ रहा है। अनिवार्य कर दिया है कि अगर उनके पास कोई कारोबार का अच्छा प्रस्ताव नहीं आए तो उसे 10 लाख रुपए तक का लोन बिना जमानत के दें। सच? बिल्कुल। आप जैसे होनहार युवाओं को कारोबार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहाय मिलने वाली कई योजनाएं हैं। बैंक से लोन भी मिलेगा और सरकार की क्रेडिट गारंटी स्कीम्स का फायदा भी। वाह, नए गैरेज की बहुत बहुत बधाई हो। चलो थैंक यू सर। जब क्षमता हो तुम्हारी अमानत तो लोन पाओ बिना जमानत। आरबीआई कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। चलो, अब पता नहीं तुम लोग सुने कि नहीं सुने। इसमें ये कह रहा है ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एनएसआईसी ऐसे बहुत से काम करते हैं जिससे कि बिना मतलब तुम्हारे पास कुछ भी कैपिटल नहीं है लेकिन तुम्हारे पास टैलेंट है तो तुम्हें। हाँ चलो, ये डिस्कनेक्ट बार बार हो जा रहा है, इसमें पढ़ाने का मजा किरकिरा हो जाता है। चलो अच्छा, अब तो आवाज क्लियर आ रही है ना? अब बिल्कुल क्लियर है आवाज मेरी? मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर? यस मैम। चलो ठीक है, सुनो। एट पेज नंबर 223, पेज नंबर 223, we should be fast. Marketing support to MSME, page 223, marketing support to MSME. Near about six points are there of this topic. Now we will see what type of supports are given to MSMEs, what type of marketing supports are given by the NSIC to MSME. कितने तरह का मार्केटिंग सपोर्ट मिलता है? सबसे पहला सपोर्ट, organizing international technology exhibition, organizing international technology exhibition in foreign countries by NSIC. NSIC MSMEs को मार्केटिंग सपोर्ट देने के लिए केवल कंट्री के अंदर ही नहीं बल्कि आउट ऑफ कंट्री डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंटरनेशनल टेक्नोलॉजिकल एग्जीबिशन कंडक्ट करता है, एग्जीबिशन लगाया जाता है जिसमें different items produced by MSMEs are kept in a decorative manner so as to attract the different companies of abroad. ठीक है, different companies of different nation, ताकि दूसरी कंपनी जो है वो हमारे कंट्री के MSME द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदे इस्तेमाल करें। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी असल इंटरनेशनल मार्केट में भी फेयर या एग्जीबिशन लगाया जाता है एमएसएमईज के प्रोडक्ट के लिए, जो कि कौन करता है किस पे? एनएसआईसी। तुम लोग पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग डोमेस्टिक एग्जीबिशन, पेज 224, ऑर्गेनाइजिंग डोमेस्टिक एग्जीबिशन एंड पार्टिसिपेशन इन एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर। तुम लोगों ने सुना होगा ट्रेड फेयर, पटना में तो ट्रेड फेयर नहीं लगता है जहां तक मुझे पता है, लेकिन दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है, ट्रेड फेयर होता है। उसमें दिल्ली में जितने भी छोटे मोटे जो भी स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं वो अपने प्रोडक्ट को वहां पर प्लेस करते हैं, लोग आते हैं और उसको ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया, आप मेरे लिए ऐसे 100 और बनाइए, है ना। तो जैसे ट्रेड फेयर लगता है उसी तरह से एनएसआई से एमएसएमईज के प्रोडक्ट का ट्रेड फेयर लगाने में हेल्प करते हैं। सेकेंड हो गया, तुम लोग इसको पढ़ना। Certain theme-based exhibitions, technology fairs, etc. may be organized by NSIC, focused on products and services offered by MSMEs, including technology suitable for employment generation. ठीक है, ऐसा टेक्नोलॉजी होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाए। एनएसआईसी एमएसएमईज के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट का मेला लगाते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारी कंपनी जाती हैं और छोटे मोटे जो उद्योगपति हैं, जो छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनको ऑर्डर करती है कि भाई मैंने ये आपका प्रोडक्ट देखा, मुझे पसंद आया, क्या आप ऐसा प्रोडक्ट मेरे कंपनी के लिए बना सकते हैं? तो वही देने से उनको ऑर्डर मिल जाता है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड,
support for co-sponsoring the exhibitions organized by other organization, industry, association, agency. This support would be in the form of co-sponsoring of the event of by NSIC. मतलब इसमें support for co-sponsoring of exhibition organized by other, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को, दूसरे एंटरप्रेन्योर को स्पॉन्सर करता है कि आप अपना सामान दिखाइए, मैं आपको हेल्प करता हूँ. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन MSME जैसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करते हैं कि मेरी तरफ से आप अपने प्रोडक्ट को फेयर में दिखाइए, ट्रेड फेयर में दिखाइए. ये भी एक बहुत बड़ा हेल्प है और NSIC ऐसे वर्क को एनकरेज करता है. सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, बायर सेलर्स मीट. बायर्स एंड सेलर्स मीट, बेचने वाला यानी MSME, खरीदने वाले यानी हम लोग. ठीक है, हम लोग हो गए इंडिविजुअल, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गए, NTPC हो गया, मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज भी बायर होते हैं. ये लोग भी सामान खरीदते हैं. रेलवे बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, तो रेलवे वगैरह जाते हैं MSME के प्रोडक्ट को देखते हैं. सुने, रेलवे या बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं वो ट्रेड फेयर में जा करके या ऐसे भी बड़े बहुत सारे प्रोडक्ट का ऑर्डर देते हैं MSMEs को. ठीक है, और इस तरह से MSMEs को NSIC के हेल्प से मार्केट मिल जाता है. तो NSIC helps MSMEs to open the market and NSIC disseminate, spread the message about the product of MSMEs to different companies or to different individuals, and NSIC tells the buyers to come forward and to buy the product produced by these MSMEs. और तुम लोग जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि नियर अबाउट 358 आइटम्स, नियर अबाउट शाश्वत, why should we all raise our hand? शाश्वत, why should we raise? गलती से हो गया. क्या हो गया? गलती से हो गया. अच्छा चलो, तो सुनो, तो 358 आइटम्स. तुम लोग आश्चर्य होगा जब हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं ना. गलती ठीक है से हो गया था मैम. अच्छा ठीक है. तो रेलवे जो है ना वो 358 आइटम्स MSME से खरीदता है. रेलवे 358 आइटम मतलब नियर अबाउट 360 तरह के आइटम वो खरीदता है MSME से. चाहे वो कैस्टर ऑयल हो, इलेक्ट्रिक बैग हो, एम्बुलेंस स्ट्रेचर हो, इलेक्ट्रिक कॉल बेल हो, ब्रूम्स हो, झाड़ू, ठीक है, बकेट्स हो, ठीक है, बोल्ट्स स्लाइडिंग हो, ठीक है, ये सारा चीज रेलवे यूज करता है. कहाँ से मिलता है इसको? MSME से मिलता है. कहाँ से मिलता है इसको? MSME से मिलता है. तो सोचो, रेलवे हमें 358 आइटम्स का ऑर्डर देता है MSMEs को और उसे खरीदता है. ठीक है, नेक्स्ट, ये बायर सेलर मीट, दोनों लोग मिलते हैं, MSME और रेलवे. MSME बड़ी बड़ी कंपनीज मिल करके सामान खरीदते और बेचते हैं. फिफ्थ, इंटेंसिव कैंपेन्स एंड मार्केटिंग प्रमोशन इवेंट्स. बहुत तरह का इवेंट कंडक्ट कराया जाता है जहां पर नॉलेज को बढ़ाया जाता है, MSMEs के नॉलेज को इन्हेंस किया जाता है. बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं, वर्कशॉप किया जाता है. कौन कराता है? NSIC. तो टाइम टू टाइम NSIC conducts seminars, workshops, and it sets up camps where MSME gets knowledge and they develop and they grow on their own. तो ठीक है, फिर अदर सपोर्ट एक्टिविटीज, और लास्ट है अदर सपोर्ट एक्टिविटीज जो कि मैं अभी यहाँ बताने नहीं जा रही हूँ. मैं यहाँ नहीं बताने जा रही हूँ. ये तुम लोग इतना सारा पॉइंट होगा, तुम लोग इसको पढ़ लोगे. That's all for NSIC. तो आज की क्लास में हम लोगों ने NSIC के बारे में डिटेल में जाना, जो कि मैंने नहीं पढ़ाया था उस वक्त.
ठीक है, during the main course of teaching I did not touch this topic, but in revision I have got this topic to discuss in the class. मैंने तुम लोगों से कहा था एक बार कि sometimes revision class becomes very fruitful. Actually, not sometimes. Every time revision class becomes very fruitful, but teachers at times get some different topics which they could not touch in the main course of teaching. So do not miss revision classes, because in revision classes sometimes I can get new topic, new word to discuss with you all, which can be asked you in the examination. Okay? तो एक बात बता बाय करने के पहले, when was NSIC established? 1955. 1955. अच्छा, इसके बाद बताओ कि एक ऐसा कौन सा स्कीम शुरू किया गया है, NSIC ने शुरू किया है? मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। हाँ, मार्केटिंग असिस्टेंस नहीं, इसका नाम है परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग। परफॉर्मेंस एंड क्रेडिट रेटिंग, पेज नंबर 223 इंडस्ट्रीज कॉर्प थ्रू, इसको शुरू किया गया थ्रू NSIC। अगर आ जाए डैश करके कि a new scheme of performance and credit rating of small businesses सब is implemented through dash, क्या फिलअप करोगे? NSIC। DIC मत कर देना, जीरो मिल जाएगा, NSIC। ठीक है, ओके। Tomorrow we will say DIC. Okay, bye.